Hello students, welcome to lesson 4. In the last classes we had covered other literary sources, and in this class we'll be starting with the Buddhist literature. So whenever we study ancient India, especially the period from the 6th century onwards, Buddhist literature becomes one of our most important historical sources. Alright, so Buddhist literature is one of the most important historical sources. It has religious value as well as historical value. So it has both these values. Now, when we talk about Buddhist literature, the first thing we should know is what were the languages used for writing the Buddhist literature. The first one was Pali, second one was Sanskrit. Pali के बाद संस्कृत आपकी डेवलप होती है, and then you have Sinhalese. Sinhalese is basically in Sri Lanka. This language is still spoken in Sri Lanka. Alright, so here generally we have political history. In Sinhalese we have political history, and Sanskrit में we usually talk about the Mahayana text, and in Pali we have our early canon. अब early canon आपका कौन सा हो गया? It is your Theravada tradition, which we'll talk about in this class. So when we first talk about is the canon literature. So canon literature was the one which was written in Pali. What does canon exactly mean? It means officially accepted sacred texts of a religion. So here we talk about the authentic teachings of the Buddha. Canon literature means कि जो चीज़ भी officially accepted है sacred text, ठीक है, जैसे कि हमारे authentic teachings of Buddha, जो बुद्धा ने बोला है, तो वो चीज़ हमारे canon literature में आते हैं, ठीक है. So now we have in canon literature we have 3 Pitakas, ठीक है. One of them being Sut Pitaka, second was Vinay Pitaka, third is Abhidham Pitaka. Sut Pitaka is just talking about teachings of Buddha, ठीक है. विनय पिटका टॉक्स अबाउट द रूल्स ऑफ द संघ. संघा जो आपके मोनास्टिक डिसिप्लिन और ये सब जो होती हैं, ये सारी इसमें आती हैं विनय पिटका में. देन यू हैव अभिधम पिटका. अभिधम पिटका इज़ लाइक फिलोसॉफिकल डिस्कशंस और मेटाफिजिक्स, ठीक है. सो इन सूत पिटका, येस, लाइक आई टोल्ड यू, वी हैव टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है. वी हैव एथिकल कोड्स, वी हैव डायलॉग्स, एंड इट ऑल्सो मेंशंस किंग्स एंड cities and everything. It is also mentioned here in Sut Pitaka. In Vinay Pitaka we have rules for monks, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघ कैसा था, एंड मोनास्टिक डिसिप्लिन, कि मोनास्ट्रीज में आपको कैसे कैसे काम करना है, कैसे आपको डिसिप्लिन रखना है, दैट कम्स इन विनय पिटका. थर्ड वी हैव Abhidham Pitaka. Abhidham Pitaka is just philosophical discussions or metaphysics, ठीक है. This basically shows how Buddhism was evolving into an intellectual religion over time. So eventually Abhidham Pitaka से we can get to know that Buddhism evolved intellectually over time, ठीक है. Then we also, let's talk about the sects जो कि हमारे थे, हीनयान and महायान. But before that, let me just give you some background. So after Buddha's death, ठीक है, the teachings were preserved orally. So his teachings were preserved orally. But over time, differences emerged regarding your interpretation of doctrine, role of monks versus the laypersons, nature of Buddha, and the path to nirvana, ठीक है. सो दिस इवेंचुअली लेड टू सेक्टेरियन डिविजन्स. अब वो सेक्टेरियन डिविजन्स हमारे हीनयान एंड महायान में आते हैं. आई हैव ऑल्सो मेड अ कंपैरेटिव टेबल बिटवीन थेरावादा एंड हीनयान एंड महायान, विच वील स्टडी, वील जस्ट गो थ्रू दीज, ठीक है. इसमें बुद्धिज़्म का डिटेल्ड वाला पार्ट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सेपरेट क्लास, विच वेयर वी विल टॉक ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बुद्धिज़्म. But in this one, we'll just talk about the Hinayan and Mahayan. So Hinayan is basically your, your individual efforts to attain salvation. कोई भी individual, अगर मैं हूँ तो फिर मेरे को salvation attain करनी है, तो वो हीनयान के अंदर आएगा, ठीक है. लेकिन महायान में क्या होता है कि जो एक इंसान होता है जिसको salvation attain करनी है, लेकिन he waits on this earth
एंड हेल्प्स अदर पीपल कि आप हमारे साथ आके अटेन करो salvation को. And this is what Mahayana is talking about. So basically it focuses on your collective efforts and not individual efforts. So Hinayan is individual efforts जो कि आप अकेले खुद attain कर लो salvation. Mahayana talks about importance of collective efforts. ठीक है, तो हीनयान just says कि okay you can follow the eightfold path which was given by Buddha to attain salvation. So हीनयान is just this much basic. महायान में क्या होता है, देयर इज एम्फोसिस ऑन डिवोशनलिज्म टू अटेन निर्वाण. ठीक है, इट इज़ सेड कि ग्रेस ऑफ बुद्धा कैन ओनली बी अटेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग डिवोशन. अब डिवोशन आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, भजन से कर लोगे, ठीक है, आइडल वर्शिप कर लोगे, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कर लोगे. सो over here you can see in Mahayana there was this temple construction, idol worship had started. Here there was no idol worship. ठीक है, यहाँ पे ये ह्यूमन के ही फॉर्म में बुद्धा को मानते थे. ठीक है, हियर वी हैव आइडल वर्शिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स. बुद्धा के हमारे आइडल्स बनने लग गए थे. तो हियर वी हैव, अब इसमें हम एक बार ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी लिटरेचर आई है. सो दिस अवधान लिटरेचर इज़ देयर विच इमर्ज्ड. ठीक है, ड्यूरिंग द महायान पीरियड ओनली अवधान लिटरेचर इमर्ज 3rd century में. It emerged and devotional literature है which was associated with Mahayana Buddhism. Alright. Apart from that we have other non-canonical. अच्छा, first we had discussed about these canonical literature, right? जिसमें हमने त्रिपिटकास की बात करी. But we also have the non-canonical literature जो कि हमारी later compositions हैं, जिसमें हमारी मिलिंदपनो, अशोक वंदना, महावंसा आ जाता है. सो हियर हमने यहाँ तक तो त्रिपिटकास तो आपका कैनन लिटरेचर में आ जाएगा. लेकिन जो आपके हीनयान महायान के बाद वाले लिटरेचर हैं, ये अवधान लिटरेचर हो गया, हेगियोग्राफीज हो गई जैसे कि ललित विस्तार, बुद्ध चरिता, एंड ऑल दीज मिलिंदपनो एंड दीपवंसा या महावंसा, दीज are a part of your non-canonical. Alright, so these are later editions, later compositions. So here we were at Avadhan literature जिसमें we talked about how it emerged and devotional literature थी which was associated with Mahayana Buddhism, क्योंकि हमने devotion पे ज़्यादा focus करना start किया था महायान से. ठीक है, yes, here in Mahayan, during Mahayan time Sanskrit became important, so you will see a lot of Sanskrit literature being written. ठीक है, तो वी हैव एग्जाम्पल्स. अशोक वंदना. अशोक वंदना से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अशोक वंदना मीन्स लेजेंड ऑफ अशोक. ठीक है, ये आपकी संस्कृत में 2nd century CE में आई है. फिर है दिव्या वंदना. दिव्या वंदना इज़ डिवाइन लेजेंड्स. ठीक है, हियर वी टॉक अबाउट स्टोरीज ऑफ किंग्स, मंक्स और मॉरल लेजेंड्स. Then we have hagiographies in where we talk about these 2 examples, Lalit Vistar and Buddha Charita, and obviously they are also written in Sanskrit because Sanskrit became important. Like here I told you कि पहले तो पाली में लिखा जा रहा है सब, like हमारे त्रिपिटकास आर इन पाली, बट देन लेटर जो नॉन कैनिकल है वो आपका संस्कृत में आ जाता है. ठीक है, देन यू हैव फिलोसॉफिकल ट्रेटिसेस ऑल्सो विच इज़ एग्जाम्पल में यू हैव मिलिंदपनो बाय नागसेना. ठीक है, तो हमने ये चीज़ कर ली. उसके बाद हमारा आता है दीपवंसा एंड महावंसा विच इज़ रिटन इन सिन्हलीज. नाउ सिन्हलीज इज़ बेसिकली और श्रीलंकन. ठीक है, तो ये श्रीलंकन सिन्हलीज में इनने दीपवंसा एंड महावंसा लिखी है. सो हियर वी कंक्लूड आवर बुद्धिस्ट लिटरेचर. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि यहाँ पे हमारा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे थिरावादा कैनन और महायान कैनन के बारे में डिफरेंस की बताया है आपको, बट आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस वील गो थ्रू दिस. तो इसमें थिरावादा, हीनयान एंड महायान. महायान को हम ग्रेट व्हीकल कहते हैं. एंड एनीथिंग, जब महायान आया था तो जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, ये अपने आप को ग्रेट व्हीकल कहते थे, इन्होंने बाकी सारी चीज़ों को लेसर व्हीकल माना. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हम अगर बात करें तो महायान में अगर आप देखो तो दिस इमर्ज्ड अराउंड द 1st century BCE. ठीक है, जोग्राफिकल स्प्रेड इंडिया ही ओरिजिन था. लेटर वेंट टू चाइना, कोरिया एंड जापान एंड टिबेट. यहाँ पे अगेन लाइक आई सेड संस्कृत सूत्रास वर देयर. ठीक है, एंड हियर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व.
अब बोधिसत्व मैंने आपको बताया था, बोधिसत्व इज समवन हु विल एक्चुअली बी ऑन अर्थ, ठीक है. ही हैज़ अटेन्ड हिज nirvan, but he is on earth to actually help other people attain nirvan. So it is like collectively you are bringing other people also to the other side, ठीक है. इसमें आपका कॉस्मिक या इटर्नल बुद्धा, व्यू ऑफ बुद्धा, लाइक हाउ दे व्यूड बुद्धा, एकदम गॉड के फॉर्म में, ठीक है. अब ये एक मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, शून्यता एंड त्रिकाया. वी विल डिस्कस दिस लेटर, ठीक है. यहाँ पे अगेन वी हैव डिवोशनल प्रैक्टिसेस एंड yeah, nowadays we do talk about Mahayana Buddhism, ठीक है. सो अभी हमारा महायान हो चुका, हीनयान हो चुका, एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट द हेगियोग्राफीज, ठीक है. आफ्टर दिस वी विल नाउ कम टू जैन लिटरेचर. सो नाउ जैन लिटरेचर में, अब जैन लिटरेचर क्या है? जैन लिटरेचर की सीक्रेट बुक्स को हम कहते हैं सिद्धांता और अगामा, ठीक है. द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट वर रिटन इन अर्ध मगधी. दे वर बेसिकली रिटन इन योर अर्ध मगधी, विच इज़ ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ प्राकृत. तो लिखी गई हैं ये प्राकृत में, ठीक है. हमारी बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थी वो हमारी पाली में थी, बट हमारी जो जैन टेक्स्ट हैं दे आर इन प्राकृत. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड नो. ऑल राइट. अब इनका स्ट्रक्चर क्या है जैन लिटरेचर में? यू हैव द पूर्वाज विच वर रिटन इन प्राकृत बाय श्वेतांबर्स, ठीक है. हाउएवर दिस इज़ अ लॉस्ट वर्क, दिस डजंट सर्वाइव. नाउ वी हैव 12 अंगास विच वर अगेन रिटन बाय श्वेतांबर्स, ठीक है. एंड इनकी ही कमेंट्रीज, 12 अंगास के ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी गई हैं दे वर नोन एज द उpangas, ठीक है. दे वर ऑल्सो रिटन इन प्राकृत. सो नाउ one thing you should know is that here we have 12 angas, right? So this was, since it was written by Shvetambars, it is actually rejected by Digambars, ठीक है. Our Jain sects are also divided into two, right? We have Digambars and we have Shvetambars. So 12 angas was written by Shvetambars but rejected by Digambars, ठीक है. They basically reject their authenticity. बट आई विल एक्सप्लेन दिस सेक्टेरियन डिफरेंस बाद में, ठीक है. आई विल नॉट एक्सप्लेन इट राइट नाउ. वी विल बी डूइंग प्रॉपर स्टडी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड हाउ इट इमर्ज्ड एंड हाउ इट डिक्लाइंड ऑल्सो. बट इन दिस पार्ट वी आर जस्ट डूइंग द लिटरेचर पार्ट. देन ऑब्वियसली आफ्टर 12 अंगास वी हैव द हेगियोग्राफीज विच इमर्ज्ड लेटर व्हेन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स ग्रू, ठीक है. अब इसमें हमारे एग्जाम्पल्स आप देख लो कौन कौन से हैं. So we have this Parisht Parvan by Hemchandra, then you have Ubay Sutra, and then you have Bhagavati Sutra. So these hagiographies emerged especially during the time when Brahmins' influence was high, ठीक है. Then we have secular literature. अब अपना इसमें जैन लिटरेचर का सिर्फ इतना ही है, ठीक है. I would just like to say कि yes, Jain literature also helps us with the modern history, ठीक है. It will help us with the modern history. It talks about our migration traditions. अब migration traditions में क्या है? Migration में हुआ था श्वेतांबर्स and दिगंबर्स के बीच में. One of the sects had migrated to south, ठीक है. इसकी जो पूरी स्टोरी है वी विल डिस्कस इन जैनिज्म. सो इसलिए जैन लिटरेचर हेल्प्स अस विद द मॉडर्न हिस्ट्री एंड द माइग्रेशन ट्रेडिशंस एंड हाउ जैनिज्म स्प्रेड टू साउथ इंडिया, ठीक है. सो दिस इज़ द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ जैन लिटरेचर. इसके बाद ऑब्वियसली वी हैव some basic examples of the secular literature where we will be talking about the political treatises, जिसमें हमारी अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य है, नीतिसार बाय कामंडक्का है, ठीक है. Then we have cultural works like Kama Sutra by Vatsyayan, and then we have Natya Shastra by Bharat Muni. So these are the few works, political treatises, cultural work, and then literary works were also there during this time. We have Bhasha who wrote Paridra Charudattam. We have Shudraka who wrote Mrich Kutikam. Then we have Kalidas. Kalidas was the one who wrote many things like, these were the few ones which are very famous. जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम,
ठीक है, तो ये वाली चीज़ें कालिदास ने लिखी हैं. देन यू हैव विशाखा दत्त हु हैड रोड मुद्राक्षस एंड देवी चंद्र गुप्तम. Alright, then we have Vishnu Sharma who wrote Panchtantra. These were nothing but short stories. You must have read it in when you were kids. Then we also have scientific literature like Aryabhattam, which was written by Aryabhat, and it's a book on astronomy. ठीक है, we have Brihad Samhita plus Panch Siddhantika, जिनको वारामीर ने लिखा है. So Brihad Samhita is your astrology plus astronomy. Panch Siddhantika is your book on maths. ठीक है. Then we have Brahmaputra Siddhanta, which is like written by Brahmagupta. ठीक है. Then this is also on maths. Then we have Charak Samhita, which is written by Charak, who was the father of medicine. Then we have Shushruta Samhita, which was written by Shushruta, who is also the father of surgery. So these are the scientific literature which developed during this time. And yes, we also have some royal biographies, जिसमें आपका हर्षचरिता which was written by बाण भट्ट. ठीक है, यहाँ पे obviously it talks about the life of हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के थे. Then we have वक्पति बाय यशोवर्मन. ठीक है. देन ये विक्रमन देविज्य बाय बिल्हन. ठीक है. सो इट टॉक्स अबाउट विक्रमादित्य 6 who was a ruler of Chalukyas. So these are the few examples of your secular literature. Now when we talk about critically evaluating literature as historical source, इसमें हम बहुत ही सिंपल चीज़ें जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, इसकी शॉर्ट कमिंग्स अगर आप देखो, ऑब्वियसली दे वर नॉट वर्क्स ऑफ प्योर हिस्ट्री. मिथिको हिस्टोरिकल अकाउंट होते हैं. हिस्टोरिकल एक्यूरेसी समटाइम्स इज लेस. ठीक है. ऑथरशिप इज सस्पेक्ट, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट बायसेस ऑफ दीज राइटिंग्स, कि हमें कभी कभी नहीं पता कि कौन से ऑथर ने क्या लिखा है. सो इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि इसका बायस क्या है. ठीक है, राइटिंग में. तो ये बाइस्ड राइटिंग्स भी हो सकती हैं. ऑब्वियसली ससेप्टेबल टू इंटरपोलेशंस एंड रिडक्शंस, मतलब कोई भी चीज़ बाद में एडिशन भी हो सकती है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के भी बोला जा सकता है. बाइस्ड ऑथरशिप, लाइक आई सेड इट हियर, ये थोड़ा सा रिपीटेड पॉइंट है, बट इट्स ओके. ठीक है. ससेप्टेबल टू प्रॉब्लम्स विद ट्रांसलेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस. मे बी दे हैव रिटन समथिंग एल्स एंड वी आर ट्रांसलेटिंग इट इन सम डिफरेंट मैनर. So obviously the interpretation would be different. Literary references do not match the archaeological records. Yes, this is very important. Sometimes literary references will also not match the archaeological record. Strengths क्या हैं अब इसकी? Yes, it is a detailed information in an organized framework. Many things are written in very detail. Now this also acts as a window into the minds of the ancient Indian authors and their patrons, कि what exactly the ancient Indian authors were thinking. ठीक है. एंड द पेट्रेंस, की जो पेट्रेंस होते थे इनको वो क्या बोलते थे कि आप हमें ऐसे पोर्ट्रे करो, ऐसे पोर्ट्रे करो, तो वो ऐसे पोर्ट्रे करके वी गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द पेट्रेंस ऑल्सो थॉट ऑफ देमसेल्व्स, ऑफ द सोसाइटी. सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स paint a vivid picture of our ancient Indian culture. It can add color to the archaeological discoveries. It can add color. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच होगा या सच ही होगा, but yes, it will help us to add color to archaeological discoveries. It tells us about the societal values and the royal ideologies. Similarly, the diffusion of myths and legends can help recreate the pattern of human migration, political expansion, cultural and commercial contacts. कि how these myths and legends basically existed and how these led to human migration. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना जैन्स में हुआ था, one of the sects went to South India. तो वो कैसे हम पता लगाते हैं ह्यूमन माइग्रेशन कैसे हुआ था, पॉलिटिकली एक्सपैंड वहाँ पे कैसे हुआ, फिर रिलीजन. ठीक है. कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स क्या बने वहाँ पे. सो दिस इज़ व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज टेल. नाउ वी विल कम टू फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज. पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि वाई डू दे मैटर. ठीक है. वाई डू दे रियली मैटर. So obviously it helps us with reconstructing our Mauryan, Gupta and early medieval India, and it gives us an external perspective. ठीक है. ये obviously हम लोग ने तो, इंडियंस ने तो नहीं लिखा है, जो बाहर के लोग आए हैं
उन्होंने लिखा है, तो हमें एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलता है, ठीक है. ऑल्सो इट विल हेल्प अस विद क्रॉस वेरिफिकेशन, ठीक है. वी कैन क्रॉस वेरीफाई रिसोर्सेज वेर जैसे कि अर्थशास्त्र है, तो हमने क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से उस टाइम पे जो फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज और थे, हम उसके साथ देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. इट विल ऑल्सो हेल्प अस क्रॉस वेरीफाई द इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. सो इन दिस टॉपिक वी एक्चुअली हैव टू कवर 3 थिंग्स, ठीक है. अपने ग्रेको रोमन, चाइनीज़ एंड अरब्स. सो दीज आर द फॉरेन सोर्सेज दैट वी नीड टू कवर. अब हमारे ग्रेको रोमन में, तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेको रोमन. नाउ इन ग्रेको रोमन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे ज़्यादा तो हमारा 3-4 चीज़ें फेमस हैं, लाइक द मेगास्थनीज का इंडिका, ठीक है. देन वी हैव पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एंड प्लिनी द एल्डर एंड टॉलेमी. बट हियर we'll start with this. So okay, here in Greco-Roman we have these Anacretes, Aristobulus and Nearchus. Now these 3 people were nothing but companion of Alexander, ठीक है. So after his death his empire got divided among his generals. So easternmost part of the empire came under your Seleucus Nicator, and he was the one who established Bactria. Now Seleucus Nicator was the one who sent Megasthenes to the court of Chandragupta Maurya. Megasthenes was the one who wrote Indica. Now here I would like to mention कि original work of Indica is lost, ठीक है. So you have writers like Arrian, Plutarch, Justin, Diodorus, Pliny the Elder, Strabo, who actually use the excerpts of Indica, ठीक है. तो हमें इंडिका के बारे में और इनके एक्सर्प्ट से भी पता चलता है, क्योंकि ओरिजिनल वर्क इवन दो इट इज़ लॉस्ट बट इट इज़ स्टिल यूज्ड बाय राइटर्स लाइक आर्यन, प्लूटार्क, जस्टिन, डियोडोरस, प्लिनी द एल्डर, स्ट्रैबो, ठीक है. तो इंडिका को एक्चुअली में इन लोगों ने यूज़ किया है, तो इसलिए हमें इनके पढ़ने से भी हमें उनके बारे में पता चलता है कि इंडिका में क्या क्या लिखा था. सो बिफोर आई गो फर्दर, here I have actually mentioned Indica in detail, ठीक है. If you get a question which is just on Indica, so this will help you in writing the answer. हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि how Megasthenes in Indica talked about the society, the polity, the administration and the sevenfold division, ठीक है, जो कि बहुत important थी. Obviously, he also talked about the spy system, law and justice, military administration, and economy. So these are the few things which Megasthenes has talked about. So yes, let's start. तो general character of Indian society. इसमें इन्होंने क्या डिस्कस किया है, इंडियन सोसाइटी हमारी कैसी थी. मेगास्थनीज प्रेजेंट्स अ हाईली आइडियलिस्टिक पिक्चर इवन दो दिस सॉर्ट ऑफ पिक्चर डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. ही सेड कि इंडियंस वर ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, रेयरली दे गो टू एनी लॉ, ठीक है. दे ट्रस्ट ईच अदर विदाउट सील्स एंड विटनेसेस. Theft was very rare. Houses were often left unguarded, and people did not drink wine except during sacrifices. So these are the few moral qualities he mentioned. बहुत ही idealistic picture उसने paint कर दी कि Indians बहुत सच्चे होते हैं, बहुत honest हैं, truthful हैं. They don't go to law only. They trust each other without any seals or witnesses, and theft बहुत rare था, ठीक है. So this basically shows admiration, like yes, he admired Indian society, but yes, it is likely to be exaggerated, ठीक है. Secondly, he says कि there was absence of slavery. He clearly states कि all Indians are free and none is slave. उसको slavery system यहाँ पे दिखा ही नहीं. However, in अर्थशास्त्र there is mention of slaves. हमारा दास system अपना mentioned है अर्थशास्त्र में. So epigraphic and literary evidences contradict him. तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी है कि yes, even though Megasthenes painted a very idealistic picture, he said कि all Indians are honest and everything is there, theft was rare, and there is also absence of slavery, but in our Shastra there is mention of the slavery system. So yes, he misunderstood the Indian servitude, ठीक है. तो इसके बाद he also divided our society into 7 parts,
ठीक है. सो दीज आर 7 बेसिकली 7 क्लासेस. दीज आर नॉट 4 वर्नाज. ठीक है, ये हमारे वो 4 वर्नाज नहीं है, ये हमारे 7 क्लासेस हैं. तो ये इसको आप वो मत समझना कि हम 7 वर्नाज की बात कर रहे हैं. दीज आर जस्ट 7 क्लासेस एंड दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. आई मैंशनड हियर. सो येस, मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इंटू 7 क्लासेस, जिसमें अपने आ गए फिलोसफर्स, फार्मर्स, हर्ड्समैन, आर्टिजन, सोल्जर्स, ओवरसियर्स एंड काउंसलर्स एंड असेसर्स. अब वही फिलोसफर्स आपके वही ब्राह्मण्स एंड शामन्स, जो कि दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक ड्यूटीज़. They were the ones who made predictions and usually most respected people. Then you have farmers who were most numerous, lived in villages. They were exempted from military services. They were protected also during wars, and they paid 1/4 produce to the state. Then you have herdsmen who lived outside the towns. They hunted animals. Artisans who made weapons and tools, exempted from taxes and received state maintenance. ठीक है. Soldiers whom they were maintained by the state indulged in leisure during peace. ठीक है. Then you have overseers. Overseers मतलब administrative officials who reported to the king. And then you have nothing but counselors and assessors. They were least in number and they were advisors to the king and highest in respect, क्योंकि ये king को सीधा advise करते थे. So they were also less in number. ठीक है, क्योंकि हर कोई तो आपका नहीं बन सकता ना काउंसलर या असेसर. ठीक है. नाउ एज पर हिम, जस्ट अ सेकेंड, let me talk about the features of the social system as per him. What he exactly thought of our social system. अब अपने वहाँ पे एंडोगेमी था. वो कहता था कि एंडोगेमी है कि no one could marry outside their जीनोस मतलब nobody could marry outside their caste. ठीक है. तो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन थी. बट ही बेसिकली सजेस्टेड कास्ट रिजिडिटी, की कास्ट बहुत रिजिड थी कि कोई बाहर अपनी इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकता था, और हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन होती थी. बट हिज 7 क्लास सिस्टम डज नॉट मैच द 4 वर्ना मॉडल एंड ही लाइकली कन्फ्यूज्ड कास्ट विद प्रोफेशन. ठीक है. ऐसा भी इतना भी वो नहीं था कि इतनी ज़्यादा एंडोगेमी हो कि कोई शादी ही नहीं करता था. ऑब्वियसली सम एक्सेप्शंस वर ऑलवेज देयर. Then obviously here we have position of farmers. Farmers were considered sacred. Even enemies did not harm them in war. ठीक है, because agriculture they believed was their mainstay, so it remained uninterrupted. However, this is possibly exaggerated because अर्थशास्त्र में there is mention of taxation and state control. ठीक है. अब पॉलिटी के बारे में ही हैज़ बेसिकली डिस्क्राइब द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र. नाउ हियर ही हैज़ जस्ट टॉक्ड अबाउट कि क्या लोकेशन थी एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन. स्ट्रेटेजिक रिवरिंग कैपिटल थी ये. फोर्टिफाइड था. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था. यहाँ पे डिस्टेंस मार्कर्स भी थे रोड पे. ठीक है. देयर वाज दिस रॉयल रोड विच वॉज कनेक्टिंग टू योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. And now we have royal court and king's life. So king remained in the court whole day. ठीक है. Open to petitions and ambassadors. Administered justice personally. He also participated in hunting races and animal fights. So this basically suggests centralized monarchy. ठीक है. It suggests a centralized monarchy with direct access system. ये चीज़ याद रखना कि उस टाइम पे he said कि centralized monarchy है. ठीक है. अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी. किंग वॉज असिस्टेड बाय दीज काउंसलर्स एंड असेसर्स. ठीक है. देयर वर सुपीरियर सिविल ऑफिशियल्स ऑल्सो. 2 कैटेगरीज में जो कि डिवाइडेड थे. एक तो आपके अग्रोनोमोइज एंड अस्त्योनोमोइज. ना अग्रोनोमोइज कौन थे. दे वर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जिनका काम क्या था. सुपरवाइज रिवर, मेजर लैंड, इंस्पेक्ट इरीगेशन, कलेक्ट टैक्सेस, मेंटेन पब्लिक बिल्डिंग्स, रेगुलेट प्राइसेस, केयर ऑफ मार्केट्स, हार्बर्स एंड टेम्पल्स. ठीक है. सो दिस इज वॉट the agronomies did. They were district officers. Secondly, we have astronomoi, municipal officials. So they basically described 6 committees of 5 members each. So this is like very important. ठीक है. इनके आपको नाम तो पता होने ही चाहिए. एक ये एंड एक ये. इनके नाम you should always remember. सो हियर अस्त्योनोमोई में म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स थे ये. दे डिस्क्राइब्ड 6 कमिटीज़ ऑफ 5 मेंबर्स ईच. ठीक है. दे टॉक्ड अबाउट दीज 6 कमिटीज़. इंडस्ट्रियल आर्ट्स, फॉरेनर्स को सुपरवाइज करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ट्रेड एंड कॉमर्स,
ठीक है, सुपरविजन ऑफ पब्लिक सेल्स, कलेक्शन ऑफ मार्केट टैक्सेस। तो ये सारे आपके 6 कमिटीज़ थे और इन 6 कमिटीज़ में 5-5 ईच, ठीक है, इसमें 5 थे, इसमें 5 थे, इसमें 5 थे, ऐसे मेंबर्स थे। अगर आप इसमें कभी फ्रॉड करते थे तो येस यू वो पनिशेबल बाय डेथ। ठीक है, तो वी कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि येस इट वाज वेरी एडवांस्ड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, स्पाई सिस्टम के बारे में, yes he talked about the spy system where he talked about large network of spies, ठीक है, report confidentially to king, ठीक है, and overseers employed collaborators। तो दिस ऑल्सो कोरिलेट्स, मतलब ये सही चीज़ थी बिकॉज अर्थशास्त्र में भी इंटेलिजेंस सिस्टम इज मैंशनड। लॉ एंड जस्टिस के बारे में व्हाट ही सेड कि किंग एडमिनिस्टर्ड जस्टिस, सिवियर पनिशमेंट वाज गिवन, म्यूटिलेशन भी होता था, ठीक है। ही हाउएवर सेड कि देयर वाज नो रिटन लॉ, हाउएवर दिस कैन बी इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र में इट इज़ मैंशनड कि एक लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता था। देन another important thing, military administration. So here he said कि army was divided into 6 boards of 5 members each। इसमें भी 6 boards थे और 5 members each, ठीक है। इसमें आपका इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर चैरियट्स, वॉर एलिफेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कमिश्नरेट एंड नेवी, ठीक है। तो बेसिकली इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर चैरियट्स, वॉर एलिफेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड नेवी, दीज वर द 6 boards of 5 members each, and state was the one who provided salaries, arms and equipments, ठीक है। Navy however is not clearly supported by Arthashastra, maybe it existed, maybe it did not, ठीक है, it is not clearly supported, but yes you should learn all these 6, you have to learn them, ठीक है, this is very important। So 6 boards of 5 members each, infantry, cavalry, war chariots, war elephants, transport and navy। अब अपनी इकोनॉमी कैसी थी? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड, वेरी फर्टाइल प्लेन्स, इरीगेशन वॉज प्रैक्टिस्ड वाइडली, 2 क्रॉप साइकिल होता था, एक समर में करते थे और एक विंटर में करते थे। फैमिन्स कहते थे कि हुए ही नहीं उस टाइम पे, बट दिस कैन बी लाइकली एग्जैजरेटेड, ठीक है। रेवेन्यू अपना 1/4 टू द स्टेट ट्रेजरी एंड लैंड समटाइम्स बिलोंग्ड टू द किंग। रिसोर्सेज में वी हैव गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन abundant, and tin and metals used in tools and ornaments. So this is what our Megasthenes Indica talks about, ठीक है। सेकेंडली हमारा एक था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसमें आई वुड जस्ट से कि इसका हमें कोई ऑथर का नहीं पता है, इट इज़ अनोनिमस ग्रीक ऑथर, ठीक है। ये 1st century सी में लिखा था, इंपॉर्टेंट फॉर आर इंडो रोमन ट्रेड बिकॉज इट मैंशंस आर इंडियन पोर्ट्स लाइक भरूच एंड मुजीरीज, ठीक है। ट्रेड आइटम्स के बारे में बात करता है, स्पाइसेस, पर्ल्स, आइवरी, सिल्क एंड रोमन ट्रेड रूट्स वाया द रेड सी, कि कैसे कैसे हमारा इंडिया और रोम के बीच में ट्रेड होता था। सो दिस इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट, ठीक है, extremely important for economic history. Then we have example of Pliny the Elder who wrote Naturalis Historia. He then complained about the Roman gold which was flowing to India, ठीक है। ही जैसे कि हमारे टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश ने हमसे गोल्ड लिया था तो हम लोग का ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, वैसे ही प्लिनी द एल्डर सेड कि रोम का गोल्ड इंडिया आ रहा था, मतलब इंडिया में इतनी अच्छी चीज़ें थी कि पीपल वो एक्चुअली डिमांडिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड रोमन गोल्ड वाज फ्लोइंग फ्रीली इनटू इंडिया, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि देयर वाज दिस ट्रेड इम्बैलेंस, ठीक है। इसके ऊपर भी एक पूरी डिबेट है जिसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। देन येस इट टॉक्स अबाउट द ट्रेड इम्बैलेंस एंड लग्जरी ट्रेड बहुत होती थी रोमन एम्पायर के साथ, ठीक है। 4th we have Ptolemy, as you know, who wrote Geographia. He provided maps of India and he listed ports and the trade centers. So yeah, these are the 4 important Greek and Roman accounts that you should know. One of the most important being Indica, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। नेक्स्ट वी हैव द चाइनीज़। अब चाइनीज़ के लिए भी आई हैव मैंशनड इन डिटेल, बट आई विल जस्ट टेल यू कि कौन कौन से इसमें से आपको करने हैं। वैसे तो आप पढ़ के पूरा ही चले जाना, इट्स इम्पॉर्टेंट तो है ही, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट येस लेट्स टॉक अबाउट चाइनीज़। सो हियर चाइनीज़ में भी वी हैव टू स्टडी 3 ट्रैवलर्स, ठीक है। नाउ दे बेसिकली दीज ट्रैवलर्स हु केम फ्रॉम चाइना, दे वर जनरली यूजली द बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, so they wanted to study Buddhism,
ठीक है, ये उसी पर्सपेक्टिव से इंडिया आए थे और उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में फिर बहुत लिखा है. ठीक है, यू हैव फाहिन, ह्यूनसैंग एंड इत्सिंग. Maybe I should just tell you in detail only from here. So let's just come to Fahim. ठीक है, एक second. हाँ, so Fahim was there. He visited during Chandragupta II. ठीक है, अब what he describes, he obviously talks about your Gupta administration, mild punishments, prosperity and conditions of Buddhism. Like I said कि they all were Buddhist pilgrims, so obviously Buddhism के बारे में बात की जाएगी. ठीक है, so Fahim visited during the reign of Chandragupta II. So now let's talk about Fahim only in detail. इसमें अपना अकॉर्डिंग टू फाहिन व्हाट वाज द सोशल कंडीशन. ठीक है, जैसे कि बहुत पीसफुल सोसाइटी थी, कोई सीरियस क्राइम नहीं था, माइल्ड पनिशमेंट्स होती थी, ऐसी कोई सिवियर पनिशमेंट नहीं देते थे लोग. पीपल ऑल्सो ट्रैवल्ड विदाउट पासपोर्ट्स. ठीक है, येस, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कास्ट. Shudras lived outside town. Untouchables had to announce entry with a stick. Respectable persons were mostly vegetarian. Yes, but remember his focus was Buddhism. Like I said, they all were believers of Buddhism, Buddhists. ठीक है, तो फिर they were all Buddhists and they did not really focus much on sociology, but their focus was Buddhism only. अब यहाँ पे अपना आता है religious conditions which he gave maximum information on. कि बुद्धिज़्म जो था, it was very flourishing. ठीक है, large number of monasteries were there, many monks were there, pilgrimage centers were active. He visited your Takshila, Mathura, Kapilavastu, Kushinagar, Patliputra and Sri Lanka. ठीक है, he also talked about Hinduism. Yes, he said कि Hinduism was also present, Vaishnavism was there and जो आपका सैक्रिफिशियल ब्राह्मणिज्म था कि जहाँ पे सैक्रिफाइसेस बहुत देने होते थे या वो करने, वो थोड़ा डिक्रीज हो रहा था, वो थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था. रिलीजियस टॉलरेंस वॉज इंक्रीजिंग. ठीक है, देयर वर कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट. ठीक है, देन वी हैव इकोनॉमिक कंडीशंस. व्हाट ही सेड कि रेवेन्यू अपना 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था. ठीक है, नो ऑपरेसिव टैक्सेशन वॉज देयर, वेलफेयर बहुत अच्छा था, फ्री हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाउसेज, चैरिटी वॉज वेरी कॉमन. ट्रेड ट्रैवल्ड बाय द ताम्रलिप्ति पोर्ट, shows maritime trade with Sri Lanka and Southeast Asia. कि how he talks about कि there was trade via the Tamralipti port. Now these ports can be important. So एक बारी आपको ये पोर्ट पता होना चाहिए कि किस इंसान ने कौन से पोर्ट के बारे में बात करी थी. तो ताम्रलिप्ति पोर्ट के बारे में इन्होंने बात करी है. इट शोज मैरिटाइम ट्रेड लिंक्स विद श्रीलंकन एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन में ही डज नॉट मेंशन चंद्रगुप्त II डायरेक्टली. ठीक है, बिकॉज हिज मेन इंटरेस्ट वॉज रिलीजन, बट इनडायरेक्टली वी अंडरस्टैंड द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, पीस एंड सिक्योरिटी एंड देयर वॉज स्टेबल एम्पायर. अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि बहुत ही आइडियलिस्टिक सोसाइटी उसने डिस्क्राइब किया एंड हिज फोकस वॉज ओनली ऑन द बुद्धिस्ट साइट्स. तो लिटिल इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर द कॉमन पीपल. इट ऑल्सो इग्नोर्स योर पोलिटिकल डिटेल्स एंड एग्जैजरेट्स द एब्सेंस ऑफ क्राइम. ठीक है, सेकेंड वी हैव ह्यूनसैंग. Now Hyunsang visited during the period of Harsha. ठीक है, and he stayed in India for 16 years. So he extremely gave a detailed account of political condition, Harsha's administration and Nalanda University. ठीक है, इस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी. तो yes, he talked about that too. इन्होंने कौन सी किताब लिखी है अपनी? CU की. CU की is the records of the Western world. Is written by Hyunsang. ठीक है, तो इसमें हम अपना डिटेल में एक बार देख लेते हैं. अब वाई डिड ही कम? ऑब्वियसली ही ऑल्सो केम फॉर बुद्धिस्ट टेक्स्ट बिकॉज ही वॉज अ बुद्धिस्ट, ही वॉज अ बिलीवर ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, देन ही ऑल्सो वॉन्टेड टू स्टडी एट नालंदा टू सी की वॉट एग्जैक्टली वॉज देयर इन हैपनिंग इन एट नालंदा. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. एंड टू करेक्ट द ट्रांसलेशन एरर्स इन चाइनीज़ बुद्धिज़्म, कि अगर कोई ट्रांसलेशन में एरर हुआ हो चाइनीज़ बुद्धिज़्म में तो ही कैन करेक्ट इट एंड टू विजिट द बुद्धिस्ट सीक्रेट साइट्स. तो अब इसने सबसे पहले तो अपनी बात करी नालंदा के ऊपर. ठीक है, नाउ ही स्पेंट सेवरल ईयर्स एट नालंदा where he studied your logic, Sanskrit, Yogacara philosophy, Yogacara school and Buddhist philosophy. ये जितने भी schools हैं we will do it later. ठीक है, नाउ इसमें हमें ये याद रखना है important details for Nalanda University ki there were 10,000 plus students, 100 plus villagers supported the university and international students were also present. So Nalanda was at its peak during Harsha. ठीक है, again religious conditions.
where Hyun Sang talks about a realistic religious picture. ठीक है, Buddhism was still present and Mahayana and Hinayan both were active, but Brahmanism or Hinduism was rising. He says that Sanskrit became dominant and Brahmins were highly respected. Many Buddhist monasteries deserted in some regions. So basically, from here, he has started showing the decline of Buddhism. ठीक है, हमारे उसमें इन्होंने क्या बात करी थी, फाहिन ने बात करी थी कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिज़्म फ्लरिश कर रहा है. बट जब ह्यूनसैंग आए थे तो ह्यूनसैंग के टाइम पे बुद्धिज़्म हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड ब्राह्मणिज्म वाज ग्रोइंग, मतलब हिंदुइज्म वाज ग्रोइंग. पॉलिटिकल कंडीशंस, हर्षा के टाइम पे हर्षा वाज एन एनर्जेटिक रूलर, पर्सनली टूरिंग द किंगडम. ही डिवाइडेड रेवेन्यू इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिशियल्स को जाना पैसे, फिर स्कॉलर्स को एंड रिलीजियस चैरिटी को. तो ये ऐसे करके ही हैज़ डिस्क्राइब्ड वेल गवर्नड किंगडम था, माइल्ड पनिशमेंट्स, रेयर डेथ पेनल्टीज़ भी ऐसी ज़्यादा नहीं होती थी. ठीक है, ही देन ऑल्सो डिस्क्राइब्स आर्मी of 60,000 elephants and 1 lakh infantry. This possibly might be exaggerated. Then obviously administration के बारे में, no forced labor, light taxation was there, officials given land records, officials given land grants. ठीक है, some corruption cases existed but not a lot. So justice was sometimes very severe, जैसे कि किसी ने कुछ गलत किया तो उसकी नाक काट दिया, आंखें काट दी या फिर कान काट दिए. ठीक है, सो ही वॉज मोर बैलेंस्ड दैन फाहिन बिकॉज ही गेव अ लिटिल बिट ऑफ रियलिस्टिक पिक्चर. ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन में येस ही टॉक्स अबाउट इंडिया बीइंग प्रॉस्पेरस, फर्टाइल एग्रीकल्चर, राइस एंड वीट वॉज अबंडेंट, एक्सटेंसिव ट्रेड, पोर्ट्स ऑन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट. ठीक है, वो अगेन ट्रेड आइटम्स क्या थे, स्पाइसेस, आइवरी, पर्ल्स, टेक्सटाइल्स. सोशल कंडीशंस क्या थी. अब सोशल कंडीशंस में ये आपको याद रखना है कि येस ही टॉक्स अबाउट कास्ट सिस्टम. ठीक है, वही ब्राह्मण्स वर मोस्ट रिस्पेक्टेड, शूद्रास इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बुचर्स एंड फिशरमैन लिव्ड आउटसाइड सिटीज़, वेजिटेरियनिज्म वॉज कॉमन. ठीक है, यहाँ पे वुमेन के ऊपर ही टॉक्ड सेड कि स्ट्रिक्ट पर्दा सिस्टम नहीं था. वुमेन रिसीव्ड एजुकेशन, लिमिटेड थी बट प्रेजेंट थी. ठीक है, सती ऑल्सो एग्जिस्टेड. And again, like I said, vegetarianism was common among the upper caste. ठीक है, onion, garlic, liquor avoided and high moral conduct emphasized. He also talked about your clothing style, food habits, cleanliness practices, use of cow dung for purification and white garments were present. ठीक है, cultural details में yes he talks about geography of India. ठीक है, क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटीज़ दिया है, कन्नौज एंड पाटलिपुत्र के बारे में, हर्षाज जनरॉसिटी एंड रिलीजियस असेंबलीज विच टुक प्लेस एट प्रयाग. सो ही ऑल्सो अटेंडेड योर कन्नौज एंड प्रयाग असेंबली. ठीक है, तो या सो he had also contributed to Bengal history. Now his account is very important for the Gauda kingdom. ठीक है, शशांका 7th सेंचुरी बंगाल पॉलिटिकल जोग्राफी. तो 7th सेंचुरी में बंगाल में क्या चल रहा था ये चीज़ भी मैंशनड की है. ठीक है, अब इसका वही क्रिटिसिज्म ऐसा ही है कि येस बुद्धिस्ट बाइस तो था ही, समटाइम्स एग्जैजरेटेड नंबर्स, फोकस्ड मोर ऑन नॉर्थ इंडिया एंड लेस डिटेल्स अबाउट साउथ इंडिया. बट येस इट इज़ द मोस्ट रिलायबल फॉरेन अकाउंट ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया. ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ ह्यूनसैंग. अब अपना एक इत्सिंग रह गए हैं. इत्सिंग बोल लो, आइसिंग बोल लो. ठीक है, तो अब हाँ, हिज अदर नेम वॉज यीजिंग ऑल्सो. सो अब इन्होंने क्या पढ़ाया भाई. अब इनका फोकस एरिया इज मोनास्टिक डिसिप्लिन, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस, ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, नालंदा में क्या लाइफस्टाइल था उसके बारे में, मैरीटाइम रूट के बारे में डिस्कस किया है कि ट्रैवल्ड वाया श्री विद्या. ठीक है, कि सुमात्रा से वो कैसे आए, शोज इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन मैरीटाइम नेटवर्क. सो इसमें ये पॉइंट ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि सुमात्रा के बारे में मेंशन्ड है एंड शोज इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन मैरीटाइम नेटवर्क्स. ठीक है, एजुकेशन में देयर इज़ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेली रूटीन ऑफ मंक्स, करिकुलम कैसा है, डिबेट कल्चर कैसा है, डिसिप्लिन सिस्टम कैसा है, एंड मेंशन 18 बुद्धिस्ट सेक्ट्स. सो हिज वर्क इज़ मोर अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैन पॉलिटिक्स. ठीक है, सो वी हैव डन डिटेल स्टडी ऑफ फाहिन, ह्यूनसैंग एंड आइसिंग or Yijing, and now I think we're just left with the Arabs, right? And Arabs में ज़्यादा तो कुछ नहीं है.
Arabs here, they came as traders. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो आई थिंक अल-बिरूनी ही है अपना. तो एक चीज़ ये है कि आफ्टर ग्रीक एंड चाइनीज ट्रैवलर्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेज इज अरब्स एंड द पर्शियन अकाउंट्स, mainly from the 8th and 12th century. So these are extremely important for your early medieval India, trade history, scientific exchanges, Arab conquest of Sindh, Gupta era chronology. ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि वाई डिड द अरब्स राइट अबाउट इंडिया? ऑब्वियसली इन 7th century CE देयर वाज राइज ऑफ इस्लाम. ठीक है, एंड अंडर द राइज ऑफ इस्लाम देयर वाज एक्सपेंशन हैपनिंग ऑफ इस्लाम अंडर उमैय्यद्स एंड द अब्बासिड्स. तो एक स्ट्रॉन्ग इंडियन ओशन ट्रेड बना हुआ था एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी भी बहुत थी इनको. ठीक है, इंडियंस के बाद अरब्स ने भी बहुत चीज़ें साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में दिया है, बट ऑब्वियसली इंडियंस हैव गिवन अ लॉट मोर. ठीक है, सो अरब्स एंड इंडियंस ने मिलके बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशनल एस्पेक्ट्स पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारे जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने कैसे भी करके, पता नहीं, यूरोपियंस ने अपने ऊपर नाम ले दिया कि हमने निकाला है, जो कि आज भी चलता है. बट एनीवे, लेट्स कम बैक टू आवर हिस्ट्री थिंग. सो अंडर कैलिफ अल मामून, ठीक है, द फेमस हाउस ऑफ विजडम was established in Baghdad. Here, translation of Sanskrit text happened into Arabic. So they were so interested in our Sanskrit text that they actually, separately decided to build a house of wisdom, and they translated Sanskrit text into Arabic. ठीक है, तो यहाँ पे अपना spread of Indian numerals, which later became Arabic numerals. तो अपने यहाँ इंडियन नंबर्स जो गए हैं अरब में, तो वहाँ पे वो अरेबिक न्यूमरल्स भी बने हैं. सो दे हैव अडॉप्टेड आवर इंडियन नंबर सिस्टम. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव हियर इज़ अल-बिरूनी. अल-बिरूनी केम टू इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी. ठीक है, 11th century में आए, स्टेड इन इंडिया फॉर ईयर्स एंड ही ऑल्सो लर्न संस्कृत. नाउ हिज बुक इज़ रेफर्ड टू एज किताबुल हिंद और तहकीक हिंद. ठीक है, where he basically studied Indian religion, philosophy, caste system, astronomy, mathematics, geography and social customs. And yeah, very scientific mindset था इनका. He compared Indian knowledge system with the Greek knowledge. ठीक है, एक important UPSC fact ये है कि अल-बिरूनी helped historians determine the beginning of the Gupta era. ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि गुप्ता एरा का बेसिकली कैसे स्टार्ट हुआ था. अब अदर Arab travelers में we have to just talk about Suleiman. Now Suleiman was a 9th century Arab merchant who wrote about the Indian Ocean trade. He also talked about the Rashtrakutas. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा अरब ट्रैवलर था जिन्होंने राष्ट्रकूटास के बारे में लिखा है, तो इट वाज सुलेमान. ठीक है, 9th century में आया था. सो दिस इज़ ऑब्वियसली यूजफुल फॉर इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल हिस्ट्री. सो दिस ब्रिंग्स अस to the end of our literary sources, and we have now completed our archaeological sources is done and literary sources are finished. ठीक है, इसके बाद अभी जो है हमारा एक बहुत ही छोटी सी क्लास होगी, क्लास नंबर 5, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरियोग्राफी, कि कैसे कैसे हमारा एंशिएंट इंडिया की क्या हिस्टोरियोग्राफी थी. ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी ऑब्वियसली इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द नॉट ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स, बट स्टार्टेड ड्यूरिंग द कलोनियल टाइम्स. ठीक है, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. बट या, सो दिस इज़ योर literary sources coming to an end, and let me know if you have any queries. Do mention it in the comment box below, and thank you. See you in the next class.